Hi everyone, my name is Aksha. Welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 12 we have completed with our male reproductive system in case of flowering plants. So from today we are going to discuss about the female reproductive structure in case of flowering plants. So as you all be known that the female reproductive part of angiosperm is known to be the pistil or carpel. So we are going to start with our topic with the structure of pistil for sure. So as I have told you that there are four reproductive walls present in any angiosperm. They are sepals, petals, female reproductive part pistil and the male reproductive part stamen. So जैसे कि मैंने आपको बताया था stamen when they are group up together they are known to be the androecium. So same wise in the case of female reproductive part pistil when they are clustered together they are said to be the gynoecium. Right? So when pistil or carpels they are clustered together they form the gynoecium, the wall, one of the reproductive wall which is very important in case of angiosperms. So if we talk about the pistil, so before going on to the structure of pistil, let me tell you about the presence of the carpels in case of the flowering plants. The number of carpels. If there is only one carpel present in the flower, that means single carpel. If the single carpel is present in the whole flower, then that structure is said to be the monocarpellary. Yes, that structure is named to be the monocarpellary. And if there is the presence of more than one carpels in any structure of a flower, suppose more matlab many number of carpels could be present, then that structure for sure will be considered as the multicarpellary structure. Right? Simple is this. अगर single carpel है, mono मतलब one, multi मतलब many. अगर एक ही carpel present in the flower, then that is said to be monocarpellary. And if multiples of the carpels are present together, then that would be called as the multicarpellary or polycarpellary as well. Poly means many. Now बच्चे, suppose there are many carpels are present. The flower is the multicarpellary. Suppose these are the carpels. Now there are two forms of carpels to be present in that flower. Either they would be present in the free form, right, and their stigmas could be clustered together and they are present in the fused form. बच्चे multicarpellary structure दो तरह का हो सकता है. One, the carpels are in the fused form. हो सकता है सारे के सारे carpels जो हैं they are fused together, and other one probably they are all freely present. If the carpels are present in the fused form, they are said to be syncarpous. ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है आपने. सिन मतलब फ्यूज्ड, सिंक कह लो, सिंक में एक साथ है ना, तो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो दे आर सेड टू बी syncarpous. अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है देन दे आर सेड टू बी एपोकार्पस. यू हैव टू लर्न दीज टू टर्म्स. इनकी एग्जाम्पल्स भी करनी है आपकी बुक में. डायग्रामेटिकली दिस फीचर इज गिवन. डायग्राम बनी है ऑफ फ्यूज्ड फॉर्म. जो फ्यूज्ड फॉर्म में कार्पल प्रेजेंट है दैट इज शोइंग इन द प्लांट ऑफ पॉपी प्लांट. एग्जाम्पल यू कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ पॉपी प्लांट जिसकी भांग बनती है ना. वी कैन inoculate the heroin, morphine from this plant. इसका scientific name भी कर लो. Its scientific name is Papaver somniferum. You must need to learn this. आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये चीज़ रिपीट होगी. पॉपी प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे इन योर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज एज वेल. सो अभी के लिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके जो कार्पल्स होते हैं दे ऑल आर इन द फ्यूज्ड फॉर्म. डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है. यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट. सो एपोकार्पस फॉर्म में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माइकेलिस. अगेन द प्लांट एग्जाम्पल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. वहाँ पे इसकी डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देखना. दे आर प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म. इसके कार्पल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है और इनके केस में जो कार्पल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द fused form. So if the carpels are present in fused, they are said to be syncarpous. If they are present in the free form, they are called as the apocarpous. I hope this is clear.
सो मूविंग ऑन टू, अब ये तो बात है नंबर ऑफ कार्पेल्स की कि एक है या ज़्यादा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फीमेल पार्ट. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है आपका? इट कुड बी नेम्ड एज पिस्टल और इट कुड बी नेम्ड एज कार्पेल. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बच्चे बात करें तो दे आर फर्दर कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. हमने पहले बहुत बार ये चीज़ डिस्कस भी की है. वी हैव आल्सो डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, बाइसेक्शुअल फ्लावर की जब हमने डायग्राम की थी तब भी पढ़ा था. द पिस्टल इज कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स. व्हाट आर दे? द टॉप वन इज द स्टिग्मा, राइट? व्हाट इज दैट? द लैंडिंग पोर्शन on which this platform on which the pollen grains will fall, on which the pollen grains will land, that sticky portion is the stigma, right? This elongated filamentous part, this is the next part, that is the style, and the basal swollen portion is named to be the ovary, right? This is the third part of a pistil. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल इज फर्दर कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड यू ऑल आर फॉर श्योर अवेयर अबाउट दिस, राइट? अब इंटरनली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दिस ओवरी इज एक्चुअली कंटेनिंग ओवेरियन कैविटी. बच्चे इसको ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं, ओवेरियन लॉक्यूल भी बोलते हैं. यू नीड टू लर्न इट. दिस कुड बी कॉल्ड एज ओवेरियन कैविटी, दिस कुड बी कॉल्ड एज ओवेरियन लॉक्यूल. इसमें देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू. दैट टिश्यू इज प्लाजेंटा टू व्हिच द ओव्यूल्स आर अटैच्ड. माइंडेड, यू हैव टू लर्न दिस. मैं थोड़ा आपको लिए और बेसिक करती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. चलो आपको समझना इजी हो जाएगा. हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपना सारा खत्म किया है, राइट? मेल रिप्रोडक्टिव में सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, राइट? दैट इज स्टेमन. हमने स्टेमन पढ़ा, ठीक है? उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. हमने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा, ठीक? फिर उसके बाद हमने इसकी डेवलपमेंट करी एंड वी लीड ऑन टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हमने इसके बारे में पढ़ा एंड फाइनली वी लीड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीटोफाइट एंड व्हिच वर दे? दे वर द पोलन ग्रेन्स. उनकी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन की, ठीक है? ये हमने मेल के केस में पढ़ा. सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. बच्चे अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ने लगे. व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट? दिस कार्पेल और पिस्टल, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ, अगर हम फीमेल की बात करें तो स्टेमन विल रिलेट विद द पिस्टल. हम पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया इन केस ऑफ मेल प्लांट्स, राइट? इन फीमेल प्लांट्स, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, they are named as the megasporangium. And what are the megasporangium? Ovules. These ovules are said to be the megasporangium. तो इसी तरीके से हम आगे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे एंड उसके बाद फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे. इन केस ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट व्हाट आर दे? दे आर एम्ब्रियो सैक. सारा हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कैसे आगे उनकी डेवलपमेंट होती है, हाउ दे लीड ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेल गैमीटोफाइट, सब कुछ पढ़ेंगे बट स्टेप बाय स्टेप. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ओव्यूल्स. अभी हम यहाँ पे ओव्यूल्स के बारे में जानेंगे. पहले हमने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अपने पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे डिस्कस किया. एक बार फिर से देख लेते हैं. पिस्टल 3 पार्ट्स हैं. The landing portion on which pollen grains will fall, that is stigma. The elongated filamentous structure, that is the style. The basal swollen portion is the ovary. Ovary is containing inside the ovarian cavity, which could also be called as the ovarian locule. And then going on to this tissue, placenta, to which the ovules, the megasporangium, is attached. So megasporangium is attached with this placenta. क्लियर?
अब बच्चे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट. यू मस्ट बी नोन ओव्यूल्स विल टर्न आउट इनटू सीड एंड ओवरी विल टर्न आउट इनटू फ्रूट, राइट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन नंबर 1. दैट मीन्स सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट and you need to learn the examples for that because they are very important again given in your NCERT. तो वही examples कर लो, they are sufficient. तो जिन plants में सिर्फ single ovule present होते हैं, you could take the example of wheat, you can go for the example of paddy, you can go for the example of mango. ये 3 examples learn कर लो, the plants in which only single ovule is present. And if ovules are more than one, they are many in number. That means you need to learn the example of papaya. Papaya could be the example. Watermelon could be the example, and you can also go for the orchid. Orchid are good examples in case of in which many ovules are present, right? So you need to learn all these examples. What are these? Depend on the basis upon the number of ovules present. राइट आगे चले तो हमने बात की पिस्टिल के स्ट्रक्चर की, ओव्यूल्स के नंबर की. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल. अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इट्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म, राइट. देखो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें let's going on to the structure of ovule. अभी मैंने बताया what is ovule. Ovule is considered to be the megasporangium. ये भूलना नहीं, this is very important, right? megasporangium कौन है? ovule है. अब ovule का structure कैसा होता है? ovule के structures भी in fact they could differ on the basis of their orientation. जो मतलब अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स होते हैं, सम आर ऑर्थोट्रोपस, सम आर एनोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, बड़े तरह के ओव्यूल्स होते हैं. फ़र्क क्या है उनमें, उनकी ओरिएंटेशंस का वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट मोर देन 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे कंटेन एनाट्रोपस ओव्यूल्स. एनाट्रोपस ovules. So let's go on to the structure of this anatropous ovule again. This diagram is given in your NCERT. आपकी NCERT में इसकी जो theoretical portion है वो थोड़ा सा complex तरीके से given है, मैं उसको थोड़ा सा easy कर देती हूँ to understand it. Let's start the discussion of the structure of ovule from the center to outerwards. जो ovule है that is actually containing the female gametophyte inside it. ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर ध्यान से समझोगे तो सब समझ आ जाएगा. Ovule is having female gametophyte inside it. What is that female gametophyte? Embryo sac. Suppose this is the structure of embryo sac. Let's suppose. Now this embryo sac will be having, embryo sac के अंदर cells होंगे, female gametophyte है तो female cells इसमें होंगे, है ना. वो सारा एम्ब्रियो सैक का अलग से स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे बट इनटू अवर लेटर वीडियोस. अभी आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो. तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले इनर टू द मोस्ट इज प्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज एम्ब्रियो सैक. नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज हैविंग द मास ऑफ सेल्स सराउंडिंग इट. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. बच्चे इसको न्यूक्लियस नहीं कहना, अलग है बिल्कुल. न्यूसेलस है. न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ सेल. मास ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? टिश्यू, है ना. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. तो दिस इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द मास ग्रुप ऑफ सेल्स and that tissue is called as nucellus. This will having nutrition, nutrients, reserve food for the embryo sac. समझ आई बात? तो it is further having the protective coverings, integuments present होती हैं. Suppose this is the covering. ये coverings हैं. These coverings are called as integuments. आप यहाँ देख रहे हो मैंने दो कवरिंग्स ड्रॉ की हैं. तो वन विल बी इट्स इनर इंटेग्यूमेंट, राइट, एंड द
one will be its outer integument. अच्छा बच्चे, अब ये भी चीज़ याद रखना, कई ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है. If only one integument is present, then that ovule is called as unitegmic ovule. ये भी नोट कर. Example, you could go for the example of higher dicots. आपको पता ना एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं they are further categorized into monocots and dicots. तो जो हायर डाइकोट्स होते हैं, हायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, नो, हायर मीन्स एडवांस्ड, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो हायर डाइकोट्स में ओनली सिंगल इंटेग्यूमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी हैविंग यूनिटेग्मिक ओव्यूल. और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जनरली, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, टू इंटेग्यूमेंट्स आर देयर, तो दे स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बाइटेग्मिक ovule, right? Because bi means two, uni means one. So you can go for the example of monocots. Monocots में bitegmic ovules होते हैं. Primitive dicots could be the example. जो primitive dicots हैं, मतलब which are not so complex, तो जो lower dicots होते हैं, they are also having bitegmic ovules. Bitegmic, unitegmic ovules क्या हैं? जिनमें नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स एक ही है. यूनिटेग्मिक जिनमें दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं. बाइटेग्मिक अगर दो इंटेग्यूमेंट्स हैं तो वन विल बी द इनर इंटेग्यूमेंट, अदर वन विल बी द आउटर इंटेग्यूमेंट. ये इंटेग्यूमेंट है क्या? दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. समझ आई बात? नाउ दिस इंटेग्यूमेंट विल आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक. ये स्टॉक की तरह बनी होती है बच्चे. हाँ, ये जो आपको आउटर स्टॉक नजर आ रही है विच इज लीडिंग थ्रू दिस इंटेग्यूमेंट, दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. नोट करते जाओ, बनाते जाओ. मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल. व्हाट इज फ्यूनिकल? द स्टॉक विच इज अटैचमेंट टू द प्लाजेंटा. अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा मैं और सिंपल कर देती हूँ. मैंने आपको बताया था ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ओव्यूल. ओव्यूल क्या है ना? दिस इज द पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है. ओवरी में दिस इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल इन विच सपोज हियर द टिश्यू इज प्रेजेंट. व्हाट इज दिस? प्लाजेंटा. प्लाजेंटा के साथ ओव्यूल इज अटैच्ड. मैंने आपको बोला ये मान लो ओव्यूल है लेकिन ये प्लाजेंटा के साथ अटैच्ड है. तो प्लाजेंटा का वो स्टॉक जो ओव्यूल का अटैचमेंट पॉइंट है, दैट इज द फ्यूनिकल. मतलब ये स्टॉक इस ओव्यूल को प्लाजेंटा के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहा है. आई होप विद दिस यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स क्लियर. स्टिल इफ एनी डाउट और क्वेरी लेफ्ट देन यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्लियर? So this stalk-like structure to which ovule is attached with the placenta is called as funicle. Now there is a next point again labeled in your NCERT. The point of attachment of the stalk, this funicle with the ovule. Suppose ये point यहाँ से ovule देखा जाए तो ovule यहाँ से शुरू हो रहा है. तो ये stalk और ovule का जो junction point है, this point is represented as हाइलम. व्हाट इज दिस हाइलम? हाइलम इज आपकी एनसीईआरटी में ना उन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट को लेबल किया हुआ है. बट नॉट ओनली दिस पॉइंट, दिस होल जंक्शन. जंक्शन मीन्स मीटिंग पॉइंट. दिस होल जंक्शन विच एक्ट एज द अटैचमेंट फॉर द फ्यूनिकल विद द ओव्यूल, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम. आई होप इट इज क्लियर. आपको अच्छे से समझ आ रही है, राइट? अब इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है देयर इज एन एंड जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है. सो दिस ओपनिंग, दिस एंड इन विच इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड. यस, micropyle means opening. So this opening, this attachment point where integuments are not present, this is called as the micropylar
ovule. This end is called as chalazal end. The chalazal region, दो regions हैं, एक micropylar and opposite to the micropylar is the chalazal end. So this is the structure of anatropous ovule. एक बार recall कर लेते हैं बच्चे. Going from the very center, this is the embryo sac, which is the female gametophyte. इसका structure कैसा होता है हम अपनी coming next video में पढ़ेंगे. Embryo sac is having the mass of cell which provides the nutrients and reserve food to the embryo sac, and that mass of cell is called as nucellus, which is covered by the integuments which act as the protective covering. One is the inner integument, other one is the outer integument. If only one integument is present, the ovule is said to be unitechnic ovule, example higher dicots. And if two integuments are present, then this structure is called as bitechnic ovule, example monocots and some primitive dicots. So this integument is also leading to the stalk-like structure, which is a funicle and act as the attachment for the ovule with respect to the placenta, like this, right? And the junction point between the funicle and the ovule, this whole structure, the junction point is called as hilum. So the point on the ovule which is devoid of presence of any integument, that end is called as micropylar end, and opposite to that there is the base of ovule which is considered to be the having chalazal end. I hope आपको समझ आया. And this is your anatropous ovule. अगर suppose मैं इसी ovule को उल्टा कर दूँ, micropylar end यही है, इसका funicle उल्टा हो जाए, यहाँ को आ जाए, तो that structure will be the orthotropous ovule. वही मैं आपको बता रही थी कि ovules भी ना अलग अलग तरह के होते हैं. That depends upon its orientation. मैं इसको आधा घुमा दूँ तो वो कोई और ovule बन जाएगा. वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. बट जो मैक्सिमम, जो मोर देन 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर हैविंग दिस एनाट्रोपस ओव्यूल. आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया हो, डायग्राम भी एंड सारा कंटेंट भी. इसकी डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन है, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम देयर एज वेल. ऑलराइट, so if you do understand the all concepts and you like my video, then do share it with your friends as well. I am coming up with my next video for sure on the embryo sac, the development and the structure of embryo sac. Stay tuned guys, keep watching, keep sharing. Thank you, keep smiling.